Thank you very much. Today I am going to discuss three things which are the basic for the class 8th student. Symmetry, very important. Data handling and probability, all are important. In math, every formula is important. So first I will talk of the symmetry. What is the meaning of symmetry? I will just give an example. Suppose a human being, if you divide the human being centrally, vertically, then our right hand side things are equal to the left hand side. Both are equal. One eye here, mouth will be divided in two parts, right leg, left leg. If it is folded, it should match completely 100% matching. The vertical line where it is divided is line of axis, so vertical line of the axis. And the two surfaces are identical, which is the symmetrical in shape and size. Here I have defined. It is a property of a structure. Human body is a structure which allows the object to be divided into two equal parts of the same shape and size. That's very important, which I have already explained. Line of symmetry. Line of symmetry is a line which divides the symmetry figure, object, structure into two equal parts. There can be more than two, you can say more than one line of symmetry. At least there are two types of the symmetry: horizontal line of the symmetry and the vertical line of the symmetry. Here I have given the example. Just see, capital B letter. If you divide in a horizontal way, it is called the horizontal symmetry, and if you fold, it will be exactly matched. In my handwritten लिखा उससे match नहीं करेगा, but completely. Similarly, E. If E is divided in between line, it is completely matching. So these two are the horizontal line of the symmetry. But if you are going to M to divide equally, then it is a vertical line of the symmetry. Here it is a vertical line of symmetry. Here it is a vertical line of symmetry. So the student should understand very clearly what is the meaning of horizontal and what is the meaning of vertical. Because horizontal and vertical has already told you in addition and subtraction. Add horizontally, add vertically, column. So that's very, very important, two things. Now, question is there can be more than one line of symmetry? Yes. How? Just see, it is a square. So vertically if you divide, one line of symmetry. Horizontally divide, another line of symmetry. Diagonally divide, the third and fourth line of symmetry. तो अब देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4. So the line of symmetry will be only 4. Right? तो यहाँ पर 6 लिखा गया है. I think it is not correct. 1, 2, 3, 4. तो line of symmetry will be 4. स्क्वायर में है मतलब जो है. अब देखिए, फिर देखिए रेक्टेंगल में देखिए 1, 2, 3 and 4. So line of symmetry it is going to be 4, not 6. देखिए हमसे भी गलती हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा. जो है इस फिगर में 4 ही दिखाया गया है. One line of symmetry, 2, 3, 4. So 4 line of symmetry. Similarly, here in a rectangle, also the line of symmetry is 4. जितने how many line of symmetry you are showing, number should be the same. Now equilateral triangle. अब यहाँ देखिए, all sides are equal. Then line of symmetry can be 3. That's very, very important. अब आइए reflection symmetry. Suppose you are standing in front of mirror. So the distance between mirror and object is equal to distance between mirror and the image.
तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री. सो इफ एन ऑब्जेक्ट फेसेस मिरर देन इमेज इज फॉर्म सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट. Such image is a reflection of the object with respect to the mirror as a vertical line of symmetry. अब ये vertical line of symmetry है और mirror अगर horizontal है तो horizontal line of symmetry हो जाएगा. ये ध्यान रखिएगा. लेकिन यहाँ पर देखिए तीन चीजें important है. An image and an object are at equidistance from a mirror, which I have already told you. The image and the object are inversely concurrent. Inversely मतलब देखिए, अब ये लाइन इधर है तो ये लाइन उल्टा है, इसको इनवर्सली बोलेंगे, बट वर्टिकल वाला इनवर्सली नहीं है. द मिरर एक्ट्स एज ए वर्टिकल एक्सिस. ऑब्वियसली अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल. सो दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री. अब देखिए, अब यहां पर दिया गया एग्जांपल दिया गया कि ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द फिगर इन ए गिवन मिरर लाइन. अब यहां देखिए ये गिवन आपका फिगर है जो है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए कहा गया है. तो देयर इज 1 2 3 4 square graph paper. So you just make a position of mirror, it is horizontal, unlike this. Then similarly B will be formed here. अब देखिए, an object in a capital B, mirror horizontal line of symmetry, and image of the capital, but all these things is going to be condition 3 things which you can do. Then it is called the reflection. अब देखिए, अब इसको कैसे किया गया है, सोल्यूशन यहां दिया गया है. फर्स्ट ड्राई स्क्वायर पेपर इक्वल टू डबल गिवन ग्राफ पेपर ए एज शोन इन फिगर बी. अब ए में देखिए ऐसे दिया गया है, ये सिंगल ग्राफ पेपर कहा गया है, लेकिन इसको 2 में डिवाइड कर दिया तो ये 2 हो जाएगा जो है. ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक शोन इन फिगर बी, ये आपको यहां दिखाया गया है. ड्रा एन ऑब्जेक्ट अबव द मिरर, ये ऑब्जेक्ट मिरर ड्रा किया गया है. और ड्रा द सिमिलर फिगर बिलो, तो ये आपका जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहा जाएगा. दिस इज द हॉरिजॉन्टल है मिरर सिमेट्री, इट इज वर्टिकल मिरर ऑफ सिमेट्री. छोटी छोटी चीजें इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लोग पूछते हैं कि सर जो है ये आईआईटी में जाने के लिए क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या होता है, हायर बेसिक साइंस पढ़ने में क्या होता है. तो इसमें क्या कि बेसिक फंडामेंटल चीज जो डे टू डे एक्टिविटी है वो आपको समझना पड़ेगा. जैसे आदमी हॉरिजॉन्टल लेटा रहता है उसको हॉरिजॉन्टली कहा जाता है, एडिशन किया जाता है हॉरिजॉन्टली किया जाता है. ये नॉमेनक्लेचर सेम है, मीनिंग सेम है, बट इट इज यूज्ड इन द डिफरेंट टॉपिक्स. अब यहां पर देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए कहा गया है. अब देखिए यहां पर ट्रेंगल है, ठीक है ना. अब ट्रेंगल में जो है 1 2 3 लाइन में सिमेट्री है. अब देखिए यहां पर स्क्वायर में हमने क्या कहा था, देखिए 1 2 3 एंड 4. तो जो ये फिगर दिखाया गया है इसमें 4 सिमेट्री है जो है. इसमें 4 दिखाया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा. क्योंकि 1 अगर इसको मोड़िएगा तो ऐसे हो जाएगा, और इससे मोड़िएगा ऐसे तो ऐसे हो जाएगा. 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ जो है. अब इसमें हॉरिजॉन्टल एक है, वर्टिकल एक है, बाकी 2 इंक्लाइंड है. अब देखिए यहां पर देखिए टी है, टी में अगर इसको कट करेगा वर्टिकली तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. यहां पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इस फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 हो ही नहीं सकते हैं. यहां पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. अब यहां देखिए यहां फिर 6 लिखा गया, फिर ये गलत है, क्योंकि यहां पर आपको जो 4 ही दिखाया गया है, देखिए 4 ही दिखाया गया. क्या दिखाया गया है, 1 इधर मुड़िए एग्जैक्टली मैच करेगा, 2 इधर मैच करेगा, 3 एंड 4. तो यहां पर 4 लिखना पड़ेगा आपको जो. तो गलती देखिए किसी से भी हो सकता है. अब किताब में कहीं के बस 6 दिया होगा तो 6 सिमेट्री दिखाया गया होगा जो है, लेकिन यहां 4 दिखाया गया इसलिए हमने 4 लिखा है. अब रोटेशनल सिमेट्री. अब रोटेशन का मतलब साइकिल का पहिया रोटेट करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये आप सब ध्यान रख लीजिए. तो अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन होना बहुत जरूरी है. अब देखिए an object has a rotational symmetry after certain amount of rotation between 0 to 360. अब पहिया जो घूमता है वो 0 to 360 में घूमता है. अब देखना पड़ेगा, पहले 90 पर रोटेट कराइए, 180 270 360. और किसमें सिमेट्री है ये आपको बताना है. अब देखिए यहां पर देख लीजिएगा जो मैंने यहां पर बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा. एग्जाम्पल, कंसीडर द कैपिटल एच एज शोन इन बिलो. अब यहां पर कैपिटल एच दिखाया गया है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिखाया गया, वर्टिकल टू द
बोर्ड। अब देखिए, अब इसको जो है 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस पोजीशन पर आ जाएगा, केवल 90 डिग्री पर। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप जो है इसको फर्दर घुमा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये आप फिगर जो आपका जो है ये, अब जो भी मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, मैं ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड इज ए सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकली है। और फिर इसको थर्ड और 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो सेकंड एंड फोर्थ इज सिमेट्री पोजीशन। अब पोजीशन लिखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। तो इस तरह से आपका ये रोटेशनल सिमेट्री हो जाता है। उसी तरह से आप देखिए रोटेशनल इसमें इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए बात किया गया है, और ये देखिए ट्रायंगल मेनी टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पर केवल इक्विलेटरल जिसके ऑल साइड्स आर सेम, डिफिनीशन पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा एंगल जो है 360 होता है, लेकिन 120 आपका जो है ये 120 120 120 ये होता है जो है। अब देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, मैंने, आप समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट पोजीशन। अब इसको, अब यहां देखिए, अगर ए आपका यहां आ गया, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और सी यहां आ गया और बी ऊपर चला गया, तो क्या होगा, ये आपका जो है हो जाएगा सेकंड पोजीशन, ये आपका सेकंड पोजीशन हो जाएगा। इधर लिख लीजिए, चाहे किधर भी लिख लीजिए, कोई पोजीशन नहीं। और ये आपका थर्ड पोजीशन हो जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगा। तो ये थर्ड यहां लिख दे रहा हूं और ये फोर्थ लिख रहा हूं। अब इस तरह केस में ये लिखना बहुत जरूरी है, ए बी सी, क्योंकि शिफ्ट करते समय आपको देखना होगा कि ए कहां आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ए को यहां लाना होगा तो अनलेस यू नॉट रोटेट 120 ए विल नॉट कम हियर। फर्दर अगर ए को 120 नहीं करे तो ए यहां नहीं आएगा, फिर करें तो अब देखिए ये पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और द फोर्थ पोजीशन, ये आपका सिमेट्रिकल रोटेशन है जो है। और आपका जो है सेकेंड नहीं, बस फर्स्ट और फोर्थ है, मतलब जो, और कोई नहीं है सिमेट्रिक पोजीशन जो, मतलब जो है। अब देखिए, अब बी है दिया है, बी एग्जांपल दिया है। अब वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, इसमें भी ए बी ए सी रख दीजिए, चलिए ए सी ही रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन जब यहाँ पर उसी को यहाँ पर दिखाया है कि 120 आएगा तब ये एक्सिस यहाँ पर आएगा जो है, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन आफ्टर रोटेशन 1 डिग्री, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ द सिमेट्री इज 2 बट ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 3। अब देखिए 2 का मतलब क्या है, देखिए ए यहां है, मतलब इस तरह का है, नंबर ऑफ सिमेट्री 2 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, मतलब 3 बार रोटेट करेंगे तब जाकर सिमेट्रिकल चीज आएगा जो है, और क्लॉकवाइज हो रहा है जो है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। अब देखिए नंबर ऑफ द सिमेट्री इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ द रोटेशन इज 3। अब ये आपका जो है एग्जाम्पल में 1 में दिया जा चुका है, यहां पर ये दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये आप बहुत चीज है जो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जैसे ये है आपका जो है 90 डिग्री करेंगे तो ऐसे होगा, 180 करें मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा ऐसे होगा, फिर 270, फिर ऐसा। अब 120 में 3 बार घुमाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा जो है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर आपका जो स्वास्थ्य साइन दिया हुआ है, अब यहां पर 90 रोटेशन हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अब एबीसी ये लिखा गया है, देखिए ये ए जो है आपका यहां पर आके मैच कर रहा है, ये फिफ्थ पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन आपका सिमेट्रिकल कहा जाएगा, क्योंकि ए ऊपर है, ए ऊपर है और बी सी डी इस तरह से है, मतलब जो है, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद देखिए ए आपका ए आ गया, तो अब कितना हुआ यहाँ पर 1 सिमेट्री है और ये सिमेट्री है। बाकी आपका देखो डी है, यहाँ डी कहीं नहीं है, सी है, सी कहीं नहीं है, बी है, बी कहीं नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो है सिमेट्रिकल 1 हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 5 बार हो गया जो, ये ध्यान रख लीजिएगा जो। अब देखिए नंबर ऑफ सिमेट्री 1
और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 कह दिया है। इसको 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 और 4 ऐसे की इसको छोड़ दिया, ये ओरिजिनल पोजीशन है। तो रोटेशन 4 है और नंबर ऑफ सिमेट्री 1 है। सिमिलरली यहां देख लीजिए लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, केस ए। अब आपका जो ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुन लीजिएगा जो है। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया है, ये हो गया। फिर 90 डिग्री किया, ये रोटेशन हो गया। तो क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, क्योंकि 1 और 2 और नंबर ऑफ सिमेट्री 1। देखिए ये लाइन, ये अब अगर आप चाहे तो आप ABCD लिख सकते हैं। ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से मतलब देख लीजिएगा। उसी तरह से इसको केस भी देखिए, इसमें भी देखिए 1 2 ऑर्डर रोटेशन 2 है, लेकिन सिमेट्री क्या है, नील है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ये मानिए कि जस्ट मोड़ देंगे तो सेम हो जाना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। कहीं हमसे भी गलती तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखते समय, अब यहाँ पर देखिए, अब आप पाएंगे यहाँ पर अच्छी तरह से पाएंगे जो है कि आप कैसे कैसे किया गया है। देखिए ट्रायंगल है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 है और नंबर ऑफ साइड 3 है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्क्वायर में वहां पर 6 लिखे थे तो नहीं, 4 है और नंबर ऑफ साइड 4 है। रेक्टेंगल में भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब पेंटागन में देखिए, पेंटागन में 5 सिमेट्री है, जो 5 सिमेट्री काउंट करिए। देखिए 1 ये हो गया, 2 3 4 5 और यहाँ पर हेक्सागन में 6 हो जाएगा। अब ये बना लीजिएगा, जो कैसे कोने में करिए, फिर बराबर बराबर होना चाहिए। 6 और ये, तो कंक्लूजन क्या निकलेंगे कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो जो पहले हमने बताया था कि स्क्वायर में 6 है, वो गलत था, वो गलती से लिख दिया गया था, समझ लीजिएगा, वो करेक्ट मैं कर दिया हूं जो है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिमाग में बच्चों को बैठाइए, और जब तक टीचर के दिमाग में नहीं बैठेगा वो बैठा नहीं सकते हैं जो है। और आई मेड एन अटेम्प्ट टू मेक सच अटेम्प्ट सो द स्टूडेंट कैन अंडरस्टूड, और स्टूडेंट से पहले टीचर समझे, पेरेंट्स समझे, बच्चों को पढ़ावे। अब देखिए हैंडलिंग ऑफ डाटा। अब ये मैं आपको बता दिया हूं, हैंडलिंग ऑफ डाटा क्या होता है। इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो है, नोन एज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत छोटा बताया गया है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है। एक पेपर BSc में होता है और MSc में पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है जो। इट इंक्लूड्स द systematic collection, presentation and interpretation of collected data for future prediction in the area of data। डाटा कलेक्शन करना होता है, जैसे 5 गांव है, 5 गांव में जो पॉपुलेशन, लड़कों का क्या है, लड़कियों का क्या है, आदमी का क्या है, जानवर का क्या है, ये आप काउंट करके लिखना पड़ेगा। तो वो डेटा रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसी बेसिस पर आप कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन का गांव ये रहेगा, तो हो सकता है कि उसमें इतना मेल हो फीमेल हो, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए कलेक्शन ऑफ डाटा, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। सिस्टम प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स, मतलब वेरियस गांव से जो है, टू आंसर द वेरियस क्वेश्चन फॉर ए फाइनल डिसीजन। दिस इज आल्सो रिफर्ड एज ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल के भी फॉर्म में किया जाता है, फिगर फॉर्म में किया जाता है, टेलीमार्क, बार चार्ट, पाई चार्ट। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो हमने बार चार्ट के रूप में ही केवल यहाँ पर बताएंगे जो है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, जितने बार रिपीट होगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब देखिए ये डेटा कलेक्शन किया गया है, अब इसमें 32 बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 2 हो गया। ध्यान रखिएगा और लिखना पड़ेगा 30 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। अब देखिए अर्थमेटिक एवरेज या मीन एवरेज बोलना, तो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू है आप कलेक्शन किए वो ये नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स, तो ये एवरेज हो जाएगा 21.5 थाउजेंड। ये क्वेश्चन 1000 में दिया है, इसलिए आंसर जो 1000 में होगा जो है, समझो ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अब क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई डेटा जितनी बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए अब एक ही डेटा दिया हुआ है, डाटा प्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म विद फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी यहां दिया हुआ है, 30 2 बार आया है, 29 1 बार आया, सब इसी तरह से 1 1 बार आया है। अब देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 3 तरह के होते हैं। क्या होता है? एवरेज वैल्यू, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकर्ड, नील, इसमें नील है। एवरेज यहाँ पर 21.5 पहले लिखा चुका हूं। अब देखिए, मोड और मॉडल वैल्यू इज द सेम थिंग। इट इज ए वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब फ्रीक्वेंसी, माने मोड और मॉडल वैल्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है जो। अब देखिए, हाउ टू फाइंड ऑब्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो पहले मैंने दिया है, ध्यान रख लीजिएगा जो है। अच्छा, अरेंज देम आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां देखिए क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया है जो। अब देखिए, ऑब्टेन द वैल्यू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये 30 हो गया जो है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ए मोड एंड मॉडल वैल्यू। तो ये 30 जो है मॉडल और मॉडल वैल्यू है। नोट, मोड मॉडल फ्रीक्वेंसी इज द सेम। अब ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोड, किसी में कहा था फाइंड द मॉडल वैल्यू, मोड वैल्यू और मॉडल वैल्यू, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए कि ये भी रिक्वेस्ट आया कि बीच बीच में सर हिंदी में थोड़ा बता दिया करिए, इसलिए आई एम ट्राइंग टू से समथिंग हिंदी बट मैक्सिमम इंग्लिश। व्हेन आई विल स्टार्ट फर्दर फ्रॉम नर्सरी टू द, उसमें हम हिंदी ज्यादा देंगे जो है। The following are age data in years of 22 teachers in school। ये एटेंडम दिया गया है डेटा, क्योंकि टीचर का नाम है भाई, आपका कितना है एज है, वो ये एटेंडम कर दिया गया है, कोई सीक्वेंस नहीं है। अब स्टेप 1, प्रिपेयर ए टेबल इन असेंडिंग इन ए कॉलम विद फ्रीक्वेंसी एज फॉलो। मैंने असेंडिंग कॉलम में भी कर सकते हैं, हर जगह कॉलम में ही करना चाहिए, इसको कॉलम मेथड कहते हैं, वर्टिकल मेथड कहते हैं। अब देखिए, सीरियल नंबर दिया हुआ है, एज ऑफ द टीचर दिया हुआ है, यहां पर आप लिख दिए गए। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा जो है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 एक बार आया है और 23 8 बार आया है, काउंट करेगा 23 8 बार आया है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा जो है। फिर इस तरह से डेटा है। और टेली चार्ट में आप, मैंने पहले बता चुका हूं कि इसमें कोई नंबर नहीं होता है। 4 बार वर्टिकल लाइन खींचिए और क्रॉस कर दिया तो 5 के इक्विवेलेंट होगा जो है। 10 करना हो तो रिपीट करना पर 2 बार, तो इसी तरह से देखिए इसको लिया गया है जो है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां दिया हुआ एक्स इज अननोन, देन मीडियम एंड मोड निकालना है। अब मीडियम मोड का मतलब समझ गया होगा कि मैक्सिमम नंबर बार आया होगा, सोल्यूशन। अब इसमें देखिए मैक्सिमम क्या है? 6 जो है आपका जो है 2 बार आया है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी भी हो गया, मोड भी हो गया, मॉडल वैल्यू भी हो गया, यहां लिखना है। और मीन क्या है? सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ करके 8 से डिवाइड करेंगे तो ये फिगर आपको मिलेगा, ये आपका एवरेज वैल्यू है, ठीक है ना। और मोड इज इक्वल टू मीन, मोड दिया हुआ है, मोड कितना 6 है, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 के बराबर लिखा गया है। और इसका सॉल्व करना जो है, आप 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर आपका 37 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 आ गया, एक्स की वैल्यू 11 आ गया। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, मोड नहीं पता है, मॉडल नहीं पता है, एवरेज नहीं पता, तो सवाल कर ही नहीं सकते हैं। और मैथमेटिक्स यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन मेनी टाइम्स, तब आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठूस जाएगा। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल 4 देखिए क्या दिखा है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। अब मीन देखना होगा, मीन क्या है? मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वाज फाउंड टू बी 51। 51 मीन पाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 62 वाज मेजर, ये 72, अब मिस्टेक कर गए, वो 62 लिखना चाहिए था तो उन्होंने मेजर कर दिया 72, गलती हो जाता है। अब फाइंड द करेक्ट मीन, अगर करेक्ट मीन निकालिए। अब देखिए, अब हमें पता है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 10, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। अब 51 मीन दिया हुआ है, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन प्लस 72, को गलती से तो 72 हो गया है, बाय 10। अब देखो हो वही, बिकॉज 9 ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट, केवल 10th गड़बड़ है, तो सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा, इसको यहां भेजिए, बाकी को वहां भेजिए, 438 आ गया। अब देखिए, अब करेक्ट मीन क्या होगा? 9 का सम तो ये है, और करेक्ट 62 है, ऐड कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट मीन निकल गया।
अब ये सब चीज पता नहीं होगा डिफिनेशन की, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मॉडल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सवाल नहीं लगा सकते चाहे कोई कितना हो मैथमेटिशियन बड़ा हो। अब यहां देखिए उसी तरह से यहां किया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स शो दैट द मोड ऑफ द फॉलोइंग इज 33। अब देखिए इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है और एक्स यहां दिया गया है, एक्स को लास्ट में लिखा गया है, शायद यहां पर लिखेगा जो है पता ही नहीं एक्स क्या है, एंड 12 है। अब देखिए 33 and 37 coming 3 times, hence mode is 33 and 37 both। अब देखिए टू मेक मोड 33, मोड को 33 बनाने के लिए x should be 33 so that it comes 4 times। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका 33 1 2 3, अब 33 का मोड और 37 का निकालना है, तो 33 या 3 है तो इसको 4 करने के लिए क्या करना है, पहले 33 करना पड़ेगा, तो x शुड बी 33 सो दैट इट कम्स 4 टाइम्स। मैक्सिमम आएगा वही मोड होगा, वही मॉड्यूल होगा, वो एवरेज उसी तरह से होता है। अब देखिए मैं समथिंग आज स्किपिंग आल्सो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप, और कोई गलत बोल रहा हूं तो उसको करेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब मीडियम देखिए, ये मीडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ऑड नंबर रहेगा तो मीडियन क्या हो जाएगा, 2 इधर होगा 2 इधर होगा 5, अगर 5 ऑड है तो 2 इधर 2 इधर, इसका मतलब n+1/2। अब देखिए फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन मीडियम इज इक्वल टू n+2 एथिक्स ऑब्जर्वेशन, और इवन रहेगा तो n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2+1 है, मतलब 5वां ऑब्जर्वेशन, 6वां ऑब्जर्वेशन, 7वां, इसको पोजीशन बोलते हैं। जो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो ये पोजीशन बताता है। अब यहां देखिए जो है क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, ये ऑड नंबर दिया है, तो सबसे पहले इसको जो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। 11 है तो 11 + 1/2 6 होगा, तो 6th नंबर बिकम्स द मीडियन। लेकिन अगर वही जो 8 ऑब्जर्वेशन होगा, इवन ऑब्जर्वेशन होगा, तो यहां देखिए 8/2 + 1 और 8/2, ये आपका 23 आ गया है। तो 2 23 हैं, तो 2 23 में उसको जो है आपका जो है मीडियम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। देख रहे ना, 33 23 23 डिवाइडेड बाई 2, अगर 8/2 करेंगे तो 4th हो जाएगा, 1 2 3, असेंडिंग ऑर्डर है ना, हाँ 1 2 3 4th हो गया 23। और फिर देखिए और ये 4 5th, तो 5th हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 4 5th 23 हो गया, 23 है आपका, 22 एवरेज 23 हो गया, जो 23 3 इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन दिस केस देयर विल बी 2 मीडियम वैल्यू अनलाइक ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन। ऑड में 1 मीडियम वैल्यू होगा और इवन में 2 मीडियन होगा जो है। अब ये भी देख लीजिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। कलर ऑफ ए फ्रॉक स्टिच्ड बाय ए शॉप इन ए डे आर गिवन बिलो, कलर दिया हुआ है और नंबर ऑफ फ्रॉक दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, अब यहां पे देखिए, व्हाट कलर ऑफ ए फ्रॉक इज ए फेवरेट अमंग द गर्ल। अब बताइए कौन सा है, आंसर जो है सबसे ज्यादा पिंक है। ये तो बहुत सिंपल चीज है। व्हाट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ डेटा एंड व्हाट इज नोन एज, तो आंसर इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, 10-12 है, मतलब जो है। स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन हिज टेस्ट, अब एक स्टूडेंट इस तरह से मार्क्स किया है, अब कह रहा है ही वांट ए मीन ऑफ 85 और बेटर ओवरऑल फॉर गेटिंग द मेरिट सर्टिफिकेट, माने वो कह रहा है कि अगर हम 85 पाएंगे तो मेरिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो है। मीन हमें पता है, सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 5 ही दिया हुआ है। सम ऑफ टोटल मार्क्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मीन क्या हो गया, 85 निकालना है, और यहां पर देखिए ये x यहां पर मानना पड़ेगा, तो x यहां पर मान लिया है 5 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू निकल जाएगा, तो 79 मार्क्स पाएगा, तो वो सर्टिफिकेट लायक हो सकता है। एवरेज 85 है जो, ये ध्यान रख लीजिएगा।
और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि एज्यूम ही शुड गेट एक्स मार्क्स, तो एडिशनल एक्स मार्क्स पाने के लिए एडिशनल देना पड़ेगा, तो वो सब चीज में वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल वे आप 10 बार लिखोगे, 10 बार, तब आपको माइंड में आ जाए ये सवाल ऐसे लगेगा। अब देखिए फिर वही चीज दिया हुआ है कि इफ मीडियम ऑफ ए फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज 20। अब देखो जी यहां पर एक एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, नहीं वो 9 है, 9 ऑब्जर्वेशन इज 20, जी नहीं है ये 9 है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए अब ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मीडियन क्या होगा, अब ये देखिए कितना है, ऑड है, फिफ्थ वैल्यू, तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फिफ्थ मीडियम वैल्यू हो जाएगा। और सम ऑफ 8 वैल्यू इज 160, तो ये आपका जो है 9 ऑब्जर्वेशन है और 9 में एक्स इंक्लूडेड है, तो आपने 8 वैल्यू का ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। अब देखिए मीडियन इज 20, तो सम ऑफ 8 वैल्यू प्लस एक्स अपॉन 9, तो सम ऑफ 8 वैल्यू और एक्स की वैल्यू निकल जाएगा 20 होना चाहिए। सिंपल वे में दिया हुआ है जो। और मल्टी बार ग्राफ, अभी तक मैंने जितने भी आप पढ़े हैं आके हैं उसको आप सिंगल बार ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, जो क्लास 6 में किया गया है। 7th में मल्टी, अब देखिए कैसे मल्टीपल ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है। सब्जेक्ट दिया है और एक सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में इतना मार्क्स है, सेकेंड ईयर में इतना मार्क्स है। हिंदी में मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है या आइटम होता है, उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। और चूंकि बार का मतलब रेक्टेंगुलर शेप में होता है, छड़ी जो है रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो जाए, तो बार इसीलिए कहा गया कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो रेक्टेंगुलर में लेंथ ब्रेथ होता है, ब्रेथ छोटा होता है, तो इसलिए एक्स एक्सिस पर ये ब्रेथ लिखा गया है। और ऐसे लिखा गया है कि ये 2 सेंटीमीटर लिखा गया है कि ये फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, इस सेकेंड ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हर सब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर पर कर दिया और 1 सेंटीमीटर का गैप कर दीजिए। तो स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। 6 में ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में 60 है, सेकेंड ईयर में 70 है। और ये ध्यान रखना होगा कि ये वाई एक्सिस में 100 मार्क्स का होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पर मानना पड़ेगा 20 30 40 100। अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट ईयर वाले को पहले प्लॉट करिए और सेकेंड वाले को सेकेंड टाइम प्लॉट करिए। अब फर्स्ट को 60 है तो 60 में लेके 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए और फिर इसको बना दीजिए। अब ये कॉमन हो जाएगा। फिर 70 है तो ऊपर 70 में लेके ऐसे ये अटैच होगा, तब जाके मल्टी बार ग्राफ इसको कहेंगे, क्योंकि देयर इज मोर देन 1 बार, तो क्या होगा, मल्टी हो गया। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई कहे नहीं। कोई स्टूडेंट्स है क्लास 1 में इतना मार्क्स पाया, क्लास 2 में ईयरली इतना, 3rd 4th 5th, तो आप बनाइए तो एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट में ये बनेगा, दूसरा सब्जेक्ट में ये बनेगा, तो 5-5 मल्टीपल हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, इस क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो दैट इज हाउ। अब आंसर देना है, बड़ी सिंपल चीज है। इन विच सब्जेक्ट डिड द परफॉर्मेंस गोज डाउन, किस किस सब्जेक्ट में डाउन गया सेकेंड ईयर में, इसमें गया है, इसमें गया है, 2 में गया है, हिंदी है और साइंस है। और किस में अप हुआ है, इसमें अप हुआ है, इसमें अप हुआ है, इसमें अप हुआ है। और इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस लिस्ट मिनिमम, किस में है, देख लीजिए। यहां पर जो है आपका जो है मैथ आएगा, जो है मैथ में परफॉर्मेंस नहीं, क्या लिखा है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस लिस्ट। परफॉर्मेंस सबसे कम किस में है, अब देखिए ये इंग्लिश में सबसे कम परफॉर्मेंस, मतलब सबसे कम परफॉर्मेंस, तो ये मैथ नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। लिस्ट मतलब सबसे कम। मैंने कहा ना कि मैंने थिंग्स जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, अगर हमसे गलती भी होता है तो करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम, और नहीं है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। अब ये देखिए लास्ट है जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसको मैं आप
वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले डिफाइन कर देता हूं. प्रोबेबिलिटी इज आल्सो ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम. जैसे सिक्का है, कॉइन है, अगर टॉस करिएगा तो या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. ये 2 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये हुआ. लेकिन अगर क्रिकेट मैच में 2 कैप्टन होते हैं, उनसे कहा जाता है कौन टेल लेगा कौन हेड लेगा. अगर टेल वाला होगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और हेड वाले की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. तो अगर टेल वाला का आ जाता है तो बेसिकली उसको पूछा जाता है आप बैटिंग करोगे कि फील्डिंग करोगे, उसी का डिसीजन फाइनल होता है. वही चीज यहां पर दिया हुआ है. अब देखिए 6 साइडेड डाई होता है, 1 2 3 4 5 6. तो पॉसिबल इवेंट कितना हो गया? 6 हो गया. 1 2 3 4 5 6. लेकिन कोई कहेगा कि हमको उसमें होता है कि 6 ही निकलना चाहिए, तो टॉस करेगा तो 1/6 ही होगा. और कहेगा नहीं 6 भी मानेंगे और 3rd भी मानेंगे तो 2/6 हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम 2 हो जाएगा जो है. अब ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है. सनराइजेज इन द ईस्ट, ये तो उगेगा ही उगेगा ईस्ट में, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गया. अब कोई कहेगा सनराइजेज इन द नॉर्थ, तो प्रोबेबिलिटी 0. तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करता है. उसी तरह सब एग्जाम्पल दिया गया है जो है. अब देखिए A letter is chosen at random from ESTIMAT. अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है. लेकिन जो है प्रोबेबिलिटी जो है किसका है आपका जो. अब इसमें देखिए कोई पूछता प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड ई का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये कितनी बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2/8 हो जाएगा. एस का बड़ा है 1 बड़ा है, टी कह रहा है 2 बड़ा है, अब 2/8 का मतलब 1/4 हो जाएगा. अब काटना होगा जानते होंगे. ए लेटर अदर देन ए, अब ए के अलावा 7 लेटर है तो 7/8 हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच एंड कीप पेशेंस, कीप रिमेंबरिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस in your whole life till you get your objective of getting admission in the engineering or the science or medical. Thank you very much.